Hello, a very good morning to all, and welcome to the next session of the organic chemistry. Under that one, in our previous video, we may discussed about the three-dimensional representation of the organic compounds. In that video, we may start out the classification of organic compound, but that was not complete. So, in this one, we are going to discuss about the classification of the organic compounds, how we classify the organic compounds, why we classify the organic compounds. Because due to the large number of non-organic compounds and their ever increasing numbers, it's not possible to study the chemical behavior of all the existing compounds individually or simultaneously. So to simplify and systematize the study of the organic compounds, it becomes necessary to classify those one under various classifications or under various kind of groups or subgroups. They may be classified according to their structure, they may be classified according to their chemical properties. So depending upon the nature of the carbon atom chain, organic compound firstly divided into two parts. First one is open chain or a long chain organic compounds that may be in acyclic formations. And the second one, the opposite of the open, means closed chain or ring chain compounds. That's why these may be known as the cyclic organic compounds. Clear? If these are cyclic in nature, that's why these may be considered as acyclic organic compounds. So the first one are acyclic. These are those kind of the compounds which may be present in a long form of carbonic attachments. That may be in open forms, there is no any closest. And the second one are those kind of the organic compounds which are in their ring formations or cyclic formations or in their closed formations. That's why these may be considered as a cyclic organic compounds. Under these one, there are different kinds of the compounds. हाँ जी मैम. So now we are going to discuss the first one, acyclic or open chain compound. Those compounds which contain an open chain of carbon atom in their molecules are known as open chain or acyclic compound. These compounds are also be known as the aliphatic compounds. क्लियर? तो हमारे पास जो चेन इसमें है फर्स्ट आपका असाइक्लिक कंपाउंड्स में organic compounds. These may be further of two types. असाइक्लिक में हमारे पास क्या है, दो तरह के हो गए. दो तरह के कौन से? आपके पास पॉसिबिलिटी है स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स की, ठीक है, और दूसरा हमारे पास पॉसिबिलिटी किसका है, ब्रांच चेन का, कि वो फर्दर ब्रांचेस में भी मिल सकता है और एक कॉमन स्ट्रेट चेन फॉर्मेशन में भी हो सकता है. इज इट क्लियर? एंड दीज आर जनरली मे बी नोन एज aliphatic organic compounds. Is it clear?
These may be further aliphatic compounds may be further divided into straight chain carbon compounds और branch chain. स्ट्रेट चेन में कैसे कि कार्बन आपके इस तरह से एक लॉन्ग फॉर्म्स में अरेंज हैं, हाइड्रोजन्स साथ में होंगे होंगे. हाउ मेनी कार्बन्स दीज हैव 5 हो गया, तो ये इसका मतलब पेंटेन है. इसको ब्रांच चेन में लिखोगे तो 1 2 3 ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो इस तरह से ऊपर भी कार्बन हो नीचे भी कार्बन हो, तो 5 में ब्रांच के फॉर्मेशन में भी हो सकते हैं. सो the first one, acyclic compounds. Acyclic compounds generally may known as the aliphatic organic compounds, and these aliphatic organic compounds may be classified into straight chain or a branch chain. Clear? Second हमारे पास होता है cyclic organic compound. Those kind of organic compounds which may be present in a ring or in a closed circuit. अब साइक्लिक हमारे पास क्या है, डिफरेंट 2 टाइप्स के होते हैं कि क्लोज रिंग में तो होंगे, बट इनकी क्लोज रिंग के बिहाफ पे ये 2 तरीके से होते हैं. कौन कौन से? पहला हमारे पास हो सकता है होमोसाइक्लिक. ठीक है, होमोसाइक्लिक बोलते हैं या इसे हम कार्बोसाइक्लिक भी बोल सकते हैं. कार्बोसाइक्लिक. होमो मीन्स सिंगल काइंड ऑफ साइकिल, इसका मतलब इसमें सिर्फ एक ही साइकिल होती है, ज़्यादा नहीं होते, एक ही क्लोज रिंग होगी. और दूसरा हम कौन सा बोल रहे हैं, हेट्रोसाइक्लिक. हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, तो होमोसाइक्लिक में हमारे पास कैसे हो गए, जो हम बोल सकते हैं कि इसके इसमें एक ही रिंग हो, तो ये भी फर्दर 2 टाइप्स के हो जाते हैं रिंग के अकॉर्डिंग. कैसे? बिकॉज वी नो दैट एलिफेटिक compounds may also be represented into cyclic formation. तो इनको हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक. कैसे? जैसे प्रोपेन 3 कार्बन्स होता है, तो 3 कार्बन को हम ऐसे दिखा दें. ठीक है, 4 कार्बन को हम ऐसे दिखा दें, साइक्लोब्यूटेन. दिस वन है साइक्लोप्रोपेन, दिस वन है साइक्लोब्यूटेन. और अगर हमें साइक्लोपेंटेन दिखाना है तो हमारे पास पेंटागन बना दो, तो आपका साइक्लो. ठीक है, दूसरी कैटेगरी होती है इसकी एरोमेटिक कंपाउंड्स की. एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपके 2 तरह के आते हैं फर्दर. इसमें भी हमारे पास 2 कैटेगरी हो जाती है. कौन से? एक तो बेंजीन वाले, बेंजीन रिंग कंटेनिंग. ठीक है, जिसको हम बेंजीनॉइड कंपाउंड्स. बेंजीन का पढ़ा है कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है आपका, और डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होती है बीच में ऐसा, तो वो हमारे पास क्या है, बेंजीनॉइड्स वाला, बेंजोइड्स वाले हो जाएंगे. और दूसरे हमारे पास होंगे नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, नॉन बेंजीन रिंग, नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स. ठीक है, इनमें सिंगल रिंग होती है, इसका मतलब इसी के ऊपर ही कोई कंपाउंड्स लगते रहते हैं, तो हम उसे कहते हैं. उसको हम सबको किस में काउंट करेंगे, ये हमारे पास मोनोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक होते हैं, किसमें एक ही रिंग होती है. एक ही रिंग में किसी भी तरह के कंपाउंड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, उसको हम काउंट करें. ठीक है ना, साइक्लोहेक्सेन्स वगैरह सभी उसी में आ जाते हैं एलिसाइक्लिक में. एरोमेटिक में बेंजीन वाला कंपाउंड होता है. इसको हम नेक्स्ट में भी रिप्रेजेंट करके देख सकते हैं. कैसे? ये देखो, ये हमारे पास क्या हो गया, बेंजीन C6H6. इसका क्लोज, ये अकेला क्या है, दिस वन इज साइक्लोहेक्सेन, तो ये मोनोसाइक्लिक है. मोनोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक. ठीक है, या हम इसे कार्बोसाइक्लिक कह रहे हैं. अब इसी में से इसका मतलब है C6H12, इसके हम 6 हाइड्रोजन्स को निकाल देते हैं, तो हमने पढ़ा हुआ अपनी जूनियर क्लासेस में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं, उसका नाम ही हमने बेंजीन दिया था. बेंजीन होता है C6H5. एरोमेटिक कंपाउंड्स के कुछ रूल्स होते हैं, हुक्कल रूल के थ्रू होता है वो 4n+2. वो हम फिर क्या है अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज बेंजीन इज ऑल्सो बिन आवर सिलेबस.
ऐसा क्यों है, उसके लिए रूल कौन सा है, वो सब क्या है हम उसमें कर लेंगे। बट जिसके पास इस तरह के इस बेंजीन से लगे हुए कंपाउंड्स होते हैं उसको हम बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स यानी बेंजोइड्स कंपाउंड कह देंगे। जैसे ये लग गया तो वो बेंजीन का कंपाउंड हो गया, इसके ऊपर OH लगा हुआ है तो ये हो गया। अब कॉमनली ये हमारा टोलिन है, ये हमारा फिनोल है। सिर्फ आप कॉमन नेम ट्राइबल सिस्टम्स में इसको पढ़ सकते हो। कैसे आई ये हम नोमेनक्लेचर में डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? तो इनको अब अगर हमारे पास मोनोसाइक्लिक है तो हम क्या है उसको, वो बाईसाइक्लिक भी हो सकता है, डिफरेंट ऐसा है ना, दो बेंजीन रिंग भी हमारे पास फ्यूज़ हो सकती हैं। तो ये हमारे किस तरह के कंपाउंड्स में काउंट हो जाएंगे, बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स में, कि इनके हमारे पास दो हैं। तो ये भी आपके एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में ही हो सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक नहीं है ये, होमोसाइक्लिक में ही। इसका मतलब होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में ऑल्सो भी क्लासिफाइड इनटू अ सिंगल साइकिल, पॉलीसाइक्लिक और बाईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक, अगर वो फ्यूज़ होके हमारे पास किसी तरह के कंपाउंड्स को बनाते हैं। उसमें आपके पास ये हमारे पास किसका है, बेंजीन रिंग का, और ये हमारे पास नॉन बेंजीन रिंग का है, ये साइक्लोब्यूटेन। इस साइक्लोब्यूटेन के साथ में अगर फ्यूज़ है तो ये साइक्लोपेंटेन भी फ्यूज़ हो सकता है, ये भी बाईसाइक्लिक है। नहीं, साइक्लोपेंटेन ये नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या है, फ्यूजिंग है। ये जो लाइन है ये लाइन उसमें कॉमन आ रही है, ठीक है। तो हेट्रोसाइक्लिक में नेक्स्ट हमारे पास आता है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में मीन्स होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइकिल। अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइकिल है तो इसका मतलब इसमें एक या दो तो होते ही हैं। तो हमारे पास इसमें भी हेट्रोसाइक्लिक के भी दो डिफरेंट काइंड्स हो गए हमारे पास। फर्स्ट हो जाएंगे एलिसाइक्लिक का, इसका एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर हेट्रो एटम इन दियर रिंग्स, कि हेट्रो एटम है, एक जैसे एटम से नहीं है लेकिन रिंग्स उसकी क्या है, हेट्रोसाइक्लिक है। इज इट क्लियर? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर हेट्रो एटम्स, एटम्स की प्रेजेंस उनके पास दो होती है, दो से ज़्यादा होती है, दोज में बी कंसिडर्ड एज एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अगर आप ये कहते हो जी ये तो मेरा क्या था, प्रोपेन था। प्रोपेन तब था जब यहाँ कार्बन, यहाँ भी कार्बन प्रेजेंट हो, यहाँ भी कार्बन प्रेजेंट हो और यहाँ भी कार्बन प्रेजेंट हो, देन ओनली, ठीक है। अगर हम यहाँ ऑक्सीजन लिख देते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इट्स ऑक्सीरेन। कैसे, ये ऑक्सीजन और इसके साथ में इस रिंग को हमने क्लोज किया तो ये ऑक्सीरेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सेम हमने अगर पेंटागन बनाया था हमारा, ऐसे बनाई थी ना पेंटागन, अब ये हमारे पास क्या था, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन में अगर हम हेट्रो एटम लेते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ तो ये क्या हो जाएगा, पायरोलिडीन। क्या नाम लिखते हैं हम इसको, पायरोलिडाइन। पायरोलिडीन तो मेरे से पूछ लिया कि उसका नहीं नहीं हाँ नहीं मैं क्लास लेके आई थी कोई। सो दिस वन इज पायरोलिडीन, ठीक है। इसी तरह इस रिंग में कहीं सल्फर भी हो सकती है, कहीं अकेला नाइट्रोजन हो जाए, तो इस तरह से उन रिंग्स के क्या है, नाम चेंज हो जाते हैं। एंड द दीज आर एलिसाइक्लिक, और इनमें भी एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक भी होते हैं, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। तो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है कि एरोमेटिक होंगे वो, एरोमेटिक का रूल होता है, बट उसमें क्या है, वही डिफरेंट एटम्स होंगे।
तो जैसे हमारे पास ये स्ट्रक्चर होता है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, दिस वन इज नॉन एज द फ्यूरेंस। सेम आपका पेंटा वाला भी बनता है, ये और ये, दिस, ठीक है। हमारे ऊपर क्या था, ये पायरोलिडिन। पायरोलिडिन का अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यानी कि इतना स्ट्रक्चर हमारा पायरोलिडिन का है, पायरोलिडिन में ही डीलोकलाइजेशन हो, हाइड्रोजन्स कम हो जाएं, तो ये हमारे पास पायरोल कंपाउंड बन जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? सो वी कैन conclude the classification of the organic compounds. Organic compounds classified into two classes. The first one is cyclic or acyclic, दो क्लोज रिंग और ओपन चेन में, ठीक है। ओपन चेन में कितने टाइप होते हैं, फर्दर टू हो जाएंगे, स्ट्रेट और ब्रांच चेन। साइक्लिक में कितने होंगे, साइक्लिक में दो टाइप होते हैं फर्दर उसके, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब है अ सिंगल रिंग प्रेजेंट। होमोसाइक्लिक के फिर फर्दर दो टाइप्स होते हैं हमारे पास, कौन से, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। सेम हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक के भी दो टाइप होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक में फर्दर हमारे पास टू क्लासिफिकेशंस होती हैं, द कंपाउंड्स कंटेनिंग बेंजीन एंड नॉन बेंजीन रिंग कंपाउंड्स, की बेंजीन हो और ना हो उसके बिहाफ पे हम उसे फर्दर टू टाइप से डिवाइड कर लेते हैं। Is it clear? So this one is all about your classification of ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन इस तरह से होती है। आपको अरेंजमेंट्स 3D रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट आप अपनी वीडियो में नॉमेनक्लेचर से स्टार्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट वन हम फंक्शनल ग्रुप सुफिक्स वगैरह पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट वन यू मे बी गो थ्रू आउट योर प्रीवियस वन। प्रीवियस लेक्चर को पढ़ो बेटा एंड कंटिन्यू करो उसे, ठीक है। And those students who are not attending these ones, they may be suffer their self. Is it clear? You may be mark out this one, and those who want to be continue, be online at 10:30 every day, 10:30, and for the plus 2 classes evening 7 o'clock be online that one. And those who want to be subscription, you may be got the subscription for every chapter. If you want to for one chapter, you can take it for that one also, but for that one you can be mail us. Is it clear? Okay, thank you, thanks a lot, have a nice day.